وی ایم خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کل مکہ رفیق احمد صاحب کے بیٹے مکہ ارشاد احمد صاحب کی رحلت ہوئی تھی، اور آج انجمن حمایت اسلام کی مسجد میں بعد نماز ظہر ان کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ اس جنازے کی نماز میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کیا۔ لوگ چنئی سے بھی بہت آئے ہوئے تھے، آمبور سے بھی بہت آئے ہوئے تھے، بسوں میں اور کاروں میں بہت سے لوگوں کا مختلف مقامات سے چنئی میں حاضری ہوئی، اور انجمن حمایت اسلام کا احاطہ لوگوں کا ایک سمندر نظر آ رہا تھا۔ کھچاکھچ لوگ مرحوم کی نماز جنازے میں شرکت کرنے کے لیے جمع ہوئے تھے، اور ظہر نماز کے بعد مرحوم کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔ تعزیت کے پیغامات کل سے مختلف لوگوں سے آ رہے ہیں۔ سماجی لیڈران، سیاسی لیڈران اور دینی علماء کرام تعزیتی پیغامات بھیج رہے ہیں۔ چند لیڈروں کی حاضری برادرم مکہ رفیق احمد صاحب کے گھر میں ہوئی ہے، اور ان سے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ ہمارے بڑوں نے کہا ہے کہ ایسے انہونی حادثات ایک آزمائش ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے ہمارے آمبور میں بھی اور چنئی بھی ہم نے دیکھا ہے کہ چند بڑی ہستیوں کے بیٹے اور بیٹی حادثوں کے شکار ہو گئے ہیں۔ آمبور میں بھی بچے بھی حادثوں کے شکار ہو جاتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ ہماری موت کب، کیسے اور کہاں ہوگی، اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ اب جب کہ ہمیں کل خبر ملی کہ رفیق احمد صاحب کے بیٹے کا چنئی میں انتقال ہو گیا ہے، تو ہمیں بے حد دکھ ہوا۔ اس ویڈیو کے ذریعے بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مکہ رفیق احمد صاحب اور ان کی فیملی کے ساتھ ہیں۔
उन्हें तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं। आम्बूर रफ़ीक अहमद साहब का वतन है। वहाँ रहने वाले बहुत दुखी हैं, इसलिए कि मक्का रफ़ीक अहमद साहब और उनके बेटों ने इंडस्ट्रियलिस्ट बनकर लोगों की मदद कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में नौकरी दे रहे हैं, मोहताजों की मदद कर रहे हैं और आम्बूर मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी जैसी तंजीमों में रहकर कौम की भलाई और बहबूदी के काम कर रहे हैं। कई अंजुमनों में, कई कॉलेजों में मक्का रफ़ीक अहमद साहब काम कर रहे हैं और उन सोसाइटियों की तरक्की के लिए माली इमदाद करने में भी पीछे नहीं हटते। ऐसी बड़ी शख्सियत के बेटे का इंतकाल हो जाता है और बेटे की क्या मुझे कहना चाहिए अनटाइमली पासिंग अवे हो जाती है तो दुख सबको होता है, मगर हमारे बड़े लोग उलमाए कराम यही कहते हैं कि यह एक आजमाइश है, इसे सब्र के साथ कबूल करने और मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत करने और दीगर अच्छे कामों में सर्फ करने की ज़रूरत है। मैं देख रहा था कि मुस्लिम लीग के लीडर प्रोफेसर क़ादर मोहिउद्दीन साहब ने भी बुज़ुर्ग हस्ती होते हुए मक्का रफ़ीक अहमद साहब के घर हाज़िरी देकर ताज़ियत अदा की है। इसके अलावा आम्बूर, चेन्नई और दीगर मकामात के बहुत से लोगों ने रफ़ीक अहमद साहब से मुलाकात कर रूबरू ताज़ियत अदा की है और पैगामात भी भेजे गए हैं। मेरे पास अब 2 पैगामात हैं। एक डीएम के प्रेसिडेंट मुका स्टालिन साहब का और दूसरा पैगाम जमीयतुल उलमा तमिलनाडु के जनरल सेक्रेटरी HB हसन साहब आम्बूरी का। ये दोनों पैगामात मैं आपकी जानकारी के लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा। திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் தலைவர் முக ஸ்டாலின் அவர்களுடைய 23/5/2026 தேதி கொண்ட இரங்கல் செய்தி.
தங்களது அன்புமகன் ஜனாப் மக்கா இர்ஷாத் அஹ்மத் சாஹிப் அவர்கள் மறைவுற்ற செய்தி அறிந்து வேதனை அடைந்தேன். பாசத்துடன் பெற்று வளர்த்த பிள்ளையை இழந்து தவிக்கும் துயரம் எந்த பெற்றோரும் சந்திக்கக்கூடாதது. இந்த துயரில் இருந்து தாங்கள் மீண்டு வரும் வலிமையை தங்களுக்கு வாய்க்க வேண்டும் என விழைகிறேன். தங்களது குடும்பத்தினருக்கும் உறவினர்களுக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்து தங்கள் கரங்களை ஆறுதலுடன் பெற்றுக்கொள்ளுகிறேன். இப்படிக்கு மு.க. ஸ்டாலின். பெறுநர் திருமக்கா ரஃபீக் அஹ்மத் அவர்கள். இப்போது ஜமியத் உலமா தமிழ்நாடு ஜெனரல் செக்ரட்டரி ஹெச்பி ஹசன் சாஹிப் அவர்கள் அனுப்பியிருக்கும் இரங்கல் செய்தியை படிக்கிறேன், கேட்பீராக. இந்த செய்தி உருதுவில் இருக்கிறது. अब जमियत उलमा तमिलनाडु के नाज़िमाना हसन अहमद आम्बोली साहब का ताज़ियती पैगाम पढ़ता हूँ, सुनिएगा। ये पैगाम 23 मई 2026 का है। इज़हार ताज़ियती पैगाम। बरवफ़ात हसरत आयात आली जनाब अलहाज मक्का इरशाद अहमद साहब बखिदमत आली जनाब अलहाज मक्का रफ़ीक अहमद साहब, चेयरमैन फरीदा ग्रुप ऑफ कंपनीज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल बरोज़ जुमा अलहाज मक्का इरशाद अहमद साहब की इंतकाल की ख़बर से दिल रंजीदा और मग़मूम हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व तआला नामुल बदल अता फरमाए। यूँ तो दुनिया में आने को बहुत आते हैं और अपनी ज़िंदगी पूरी फरमाकर दार फ़ानी से दार बक़ा को कूच कर जाते हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसी शख्सियात होती हैं जो मुद्दतों रोया करेंगे जाम पैमाना तुझे के मिस्दाक़ होते हैं। इन्हीं दाना व फर्जाना शख्सियात में से एक अजीम शख्सियत अलहाज मक्का इरशाद अहमद साहब का नाम नामी भी जली सुनहरी हुर्फ़ों में लिखने के काबिल है। आपकी वफ़ात हसरत आयात पर हम खुद्दाम जमियत उलमा तमिलनाडु अपने गहरे दुख का इज़हार करते हुए दुआ गो हैं कि मौलाए करीम मरहूम मक्का इरशाद अहमद की तुरबत पाक को अपने अनवार व तजल्लियात से मामूर फरमाए, दरजात बुलंद फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए और उनके तमाम अहल खाना व मुतअल्लिक़ीन मुतवस्सिलीन को सब्र व इस्तिक़ामत अता फरमाए। आमीन। वस्सलाम माल एहतराम। हसन अहमद आम्बोरी नाज़िम में आला जमियत
علماء تمل ناڈو۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ مرحوم مکہ ارشاد احمد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیں۔ اچھا، تب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔